Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture delegation of authority by an agent. A delegatus non potest delegator, which means a delegate can't further delegate. ऑर्डिनरी जो है एजेंट से ये अपेक्षा की जाती है कि एजेंसी का जो कुछ भी बिजनेस उसने लिया वो खुद ही करेगा. And generally he can't further delegate the work which he has taken, which has been delegated to him by his principal. This is based on general rule, delegatus non potest delegator, which means that delegate can't further delegate. Thus an agent, being a delegate of his principal, can't pass on the delegated authorities to someone else. This rule is incorporated in section 190 of Indian Contract Act, which provides an agent can't lawfully employ another person to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally. यानी जो एक्ट उसने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली पर्सनली करने के लिए करने का प्रॉमिस किया है वो किसी और से नहीं करा सकता है. Thus, an agent can't pass on power to another person. The reason for the rule is that the principal appoints a person to act on his behalf in whom he has full faith and confidence. Moreover, the principal relies upon the qualifications, skill and competence of the agent. However, under exceptional circumstances, an agent may appoint another person as his sub-agent. यानी एजेंट जिसको अपॉइंट करेगा कोई काम कराने के लिए कुछ सामान्य परिस्थितियों में पावर डेलीगेट करेगा उसको कहेंगे सब एजेंट. An agent may also appoint a sub-agent to assist him in some of his day-to-day acts and may delegate some of his powers to the sub-agent. एजेंट को कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में एजेंसी का काम करने के लिए सब एजेंट अपॉइंट करने की पावर होती है. सेक्शन 191 प्रोवाइड सब एजेंट की डेफिनेशन बताती है. सेक्शन 190, a sub agent is a person employed by and acting under the control of the original agent in the business of the agency. 191 क्या कहती है कि सब एजेंट वो होता है जो ओरिजिनल एजेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है और ओरिजिनल एजेंट के कंट्रोल में ही काम करता है. Thus, a sub-agent is a person appointed by the original agent to act in the business of agency. The sub-agent acts under the control of original agent. It will be interesting to know that the relationship between the original agent and sub-agent is that of principal and agent. एजेंट और सब एजेंट की जो है रिलेशनशिप क्या होगी? प्रिंसिपल और एजेंट. जो ओरिजिनल एजेंट है वो प्रिंसिपल हो जाएगा, सब एजेंट एजेंट हो जाएगा. It may however noted the original agent has no general authority to appoint sub agent in all circumstances. सभी परिस्थितियों में एजेंट को सब एजेंट अपॉइंट करने की पावर ही नहीं होती. एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही वो अपॉइंट कर सकता है. वो कौन सी एक्सेप्शनल जो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें एजेंट सब एजेंट अपॉइंट कर सकेगा? पहला है where the nature of work is such that the appointment of sub agent is necessary. कि काम जो एजेंसी का है मालिक ने जो दिया है वो ऐसा है कि वो सब एजेंट से ही कराया जा सकता है, अकेले नहीं किया जा सकता है. सेकेंड, where the custom of a particular trade provides the sub agent can be appointed. The architects generally appoint surveyor, estimators, draftsmen. जो है कोई ट्रेड है कस्टम में, कस्टम है तब भी जो है एजेंट सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है. जनरली जो है सर्वेयर जो है
जो एजेंट है, आर्किटेक्ट है, वो सर्वेयर को, एस्टिमेटर्स को, ड्राफ्ट्समैन वगैरह को अपॉइंट करता है। थर्ड है वेयर द प्रिंसिपल हैज एक्सप्रेसली अथॉराइज्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट, जब मालिक ने खुद ही कहा ठीक नहीं अब खुद नहीं कर पाते किसी और से करा दो, तब करा सकता है, सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है। वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट बिकम्स नेसेसरी ड्यू टू सम अनफॉरसीन नेसेसरीज, इमरजेंसी, कुछ आपात परिस्थितियां जब आ गई हैं तो उनमें भी जो है एजेंट सब एजेंट अपॉइंट कर सकेगा। वेयर द एक्ट टू बी डन इन प्योरली मिनिस्टीरियल नेचर, मिनिस्टीरियल नेचर का है, क्लरिकल नेचर का है, वहां पर भी जो है वो एजेंट सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पर्सनल और जो है प्रोफेशनल स्किल जो है जैसे अपॉइंट न हो, वहां पर रूटीन मैटर निपटाने के लिए, क्लरिकल मैटर निपटाने के लिए हो, वहां पर जो है एजेंट सब एजेंट अपॉइंट कर सकेगा। Where the principal knows that the agent has an intention to appoint sub agent, but he doesn't object to it. प्रिंसिपल को पता है कि ये एजेंट खुद नहीं करता है, किसी और से ही कराता है, और वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, तब भी वो सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड माना जाएगा। अब जो है रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट के बीच, मालिक के बीच अपॉइंट किया है क्योंकि ओरिजिनल एजेंट ने, तो रिलेशन क्या होंगे इस दो परिस्थितियों में डिस्कस किए जा सकते हैं। वेयर द सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, सेक्शन 192, एंड वेयर द सब एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड, 193। वेयर द सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, वे हालांकि ये अपॉइंटमेंट एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन जो एक्सेप्शनल अपॉइंट करने की पावर्स है एजेंट को, सब एजेंट अपॉइंट करने की, उन केसेज में द अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट प्रॉपर एंड वैलिड, देन फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ प्रॉपर अपॉइंटमेंट। नंबर 1, द प्रिंसिपल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सब एजेंट एंड इज बाउंड बाय हिज एक्ट्स, मोरओवर द प्रिंसिपल इज आल्सो लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। यदि अपॉइंटमेंट सब एजेंट का प्रॉपरली अपॉइंटमेंट हुआ है तो सब एजेंट के काम के लिए थर्ड पार्टी के प्रति प्रिंसिपल बाउंड होगा। मोरओवर द प्रिंसिपल इज आल्सो लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट, थर्ड पार्टी के प्रति भी जो है प्रिंसिपल सब एजेंट के कार्यों के लिए लायबल होगा। सेकंड है ओरिजिनल एजेंट इज लायबल टू प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट, सब एजेंट के कार्यों के लिए ओरिजिनल एजेंट मालिक के प्रति लायबल होगा। मोरओवर द agent had, if the sub agent had misappropriated the principal property on its sale proceeds, the original agent is responsible to principal for the same. Third है original agent, sub agent is responsible for the acts to the original agent. Original agent के acts के लिए sub agent के acts के लिए original agent मालिक के प्रति liable होगा। But he is not responsible to principal except in cases of fraud or willful wrong. सब एजेंट जो है मालिक के प्रति तभी लायबल होगा जब वो फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग कोई एक्ट किया हो, अदरवाइज वो जो है नहीं लायक हो सकता है। In Raghunath Prasad versus Sevaramaya 1980, Allahabad High Court has observed that in case of proper appointment of the sub agent, the principal is bound by and responsible for the sub agent's act as if he were originally appointed agent of the principal. कहने का मतलब है कि जो ये अपॉइंटमेंट प्रॉपर है तो सब एजेंट के कार्यों के लिए मालिक लायबल होगा, जैसे कि उसने उस सब एजेंट को एजेंट ने नियुक्त किया हो, उसने खुद अपॉइंट किया हो। दूसरी सर्कमस्टांसेस है वेयर द सब एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंटमेंट, कहने का मतलब यह है कि जहां पर पावर नहीं थी सब एजेंट अपॉइंट करने के एजेंट को, फिर भी उसने अपॉइंट कर दिया है, तो ऐसी परिस्थितियों में रिलेशनशिप क्या होगी? समटाइम्स द अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट इज नॉट बिटवीन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, इन सच केसेस द अपॉइंटमेंट ऑफ sub agent is unauthorized and thus improper and invalid. Following are the effects of improper appointment. Number 1, the principal is not represented by the sub agent
and is not bound by his acts. Moreover, the principal is not liable to third parties for the acts of the sub-agent. सब एजेंट अपॉइंटमेंट क्लियर सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो सब एजेंट मालिक को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, सब एजेंट के कार्यों के लिए मालिक बिल्कुल नहीं लायबल होगा. ओरिजिनल एजेंट इज लायबल टू द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट. द सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर एनी ऑफ हिज एक्ट्स. फिर दूसरा आता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. Substituted agent means an agent named by the original agent to act on behalf of the principal. यानी जो नामजद किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ओरिजिनल जो है मालिक की ओर से, और वो मालिक के कंट्रोल में काम करता है, तो ये जो है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होता है. दोनों के डिफरेंस आगे बताए जाएंगे. पहले 194 में डिफिनीशन क्या दी हुई है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की. वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी हैज नेम्ड अनदर पर्सन अकॉर्डिंगली, सच पर्सन इज नॉट सब एजेंट, इज सब एजेंट बट एन एजेंट फॉर द प्रिंसिपल for such part of the business of agency as is interested to him. कहने का मतलब यह है कि सब एजेंट इज नॉट एजेंट अपॉइंटेड बाय द ओरिजिनल एजेंट टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल. इट मे बी नोटेड द ओरिजिनल एजेंट मस्ट हैव द अथॉरिटी टू अपॉइंट सच एजेंट. यानी ओरिजिनल एजेंट को मालिक की ओर से अथॉरिटी मिली हुई है, और उस अथॉरिटी के तहत जिसको अपॉइंट करेगा वो कहलाएगा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अपॉइंटेड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. इट मे बी नोटेड दैट द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एक्ट्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रिंसिपल. दोनों में अंतर यही है कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट प्रिंसिपल के डायरेक्ट कंट्रोल में काम करता है, और वो जो सब एजेंट है वो ओरिजिनल एजेंट के कंट्रोल में काम करता है. For example, A directed B is solicited to sell his estate by auction. A ने अपने solicitor B से कहा हमारी जो estate है auction से बेच दीजिए. A also authorized B to employ an auctioneer for the purpose. वो आगे फिर authorize करता है कि इसके लिए कोई auctioneer नीलामकर्ता जो है नियुक्त कर लीजिए. B named C an auctioneer to conduct the sale. B जो एजेंट है उस एक auctioneer C को जो है नेम कर देता है, नामांकित कर देता है, नामजद करता है. जिसको वो नामजद करता है वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होगा, एजेंट नहीं होगा. द नेक्स्ट, A authorized B a merchant to recover the money due from A from the C. A ने B एक व्यापारी को उसका जो पैसा बकाया है A के पास है ना, A का C के पास, वो सुनने के लिए अपॉइंट करता है बी को. बी इंस्ट्रक्टेड डी ए सॉलिसिटर टू टेक लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट सी. बी जो है, डी एक वकील है, सॉलिसिटर है, उसको सी के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग करने के लिए अपॉइंट करता है. तो ये जो सी है वो क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होगा, और सीधे मालिक के कंट्रोल में काम करेगा. और यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को जो है अपॉइंट कर देता है तो वो सीन से गायब हो जाता है, उजल हो जाता है. दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो दोनों अपॉइंट किए वैसे जो है ओरिजिनल एजेंट द्वारा जाते हैं, लेकिन जो सब एजेंट है वो ओरिजिनल एजेंट के कंट्रोल में काम करता है, और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट डायरेक्टली प्रिंसिपल के कंट्रोल में काम करता है. सेकेंड, a sub agent is responsible to the original agent alone and not to the principal except for fraud or willful wrong. सब एजेंट जो है ओरिजिनल एजेंट के प्रति ही जो है वो लायबल होता है, फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग को छोड़ करके वो जो है केवल ओरिजिनल जो है एजेंट के प्रति लायबल होगा, प्रिंसिपल के प्रति नहीं.
whereas substitute agent is responsible to the principal alone and not to the original agent. Substituted alone जो है प्रिंसिपल के प्रति लायबल होगा, ओरिजिनल एजेंट के प्रति लायबल नहीं होगा. नेक्स्ट है द ओरिजिनल एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट. सब एजेंट के कार्यों के लिए ओरिजिनल एजेंट अपॉइंट जो है लायबल होता है. Whereas in substituted agent, the original agent is not responsible to the principal for the acts of the substituted agent if he has taken reasonable care in appointing him. Substituted agent के कार्यों के लिए ओरिजिनल एजेंट नहीं लायबल होगा जब तक उसने अपॉइंटमेंट में कोई जो है नेग्लिजेंस न बरती हो. लास्ट है there is no direct contract between the sub agent and principal. Neither the principal can file a suit against the sub agent for damages nor sub agent against the principal for his remuneration, whereas there is direct contract between the substituted agent and principal. The principal can file a suit against the substituted agent for damages. The substituted agent can also file a suit against the principal for the remuneration. Thanks very much.